समाज में भेदभाव रहने का यही कारण है कि शिक्षा नहीं है। अगर शिक्षा आ जाए तो सब कुछ खत्म हो जाएगा, गरीबी भी और भेदभाव भी। जब तक बदलाव नहीं होगा तो हम और आप निकलेंगे कैसे, आगे क्यों कैसे बढ़ पाएंगे। In the interiors of India, innumerable brave hearts seek to improve their immediate society on their own terms. Even without a strong financial background or experience, all they need is a pure heart and a will to lead the society. They are our true leaders. Oxfam India's project By the People, in consortium with Centre for Social Equity and Inclusion and Praxis and supported by European Union, seeks to support such grassroots leaders from 3 marginalized communities: Dalits, Muslims and Tribals. These leaders are from community-led organizations across 6 states of India. Tribal communities worship their forests, since their livelihood has traditionally depended on the well-being of forests. Ram Kumar, a tribal farmer, is an educated and socially active person who believes in the right of tribals to their forests. When a new law on community forest rights came up, he took it up as an opportunity. यहाँ बहुत बड़ा माइनिंग होने वाला है, जो रावघाट प्रोजेक्ट आयरन और माइनिंग है। ये प्रोजेक्ट आने वाला है तो ये गांव विस्थापन होंगे और बहुत लोग प्रभावित होंगे, किसी का घर भी टूटेगा। Along with Raja Ram, a fellow villager, he received training and learnt about necessary forest laws to build awareness. कि नजरी नक्शा बनाए, कहाँ पे सड़क है उसको भी दर्शाए। दावा फार्म भरने के बाद ना उसको वन अधिकार समिति के पास जमा किए। With ground support from a local NGO, their leadership efforts expanded beyond their own villages and resulted in a major victory. कोई आगमन के बिना इजाजत के कुछ ले जा नहीं सके, जहाँ तक फॉरेस्ट वाला भी, ये कानून में प्रावधान है। जो दावे जमा कराए गए थे उनमें से 20 गांव के दावे का एक समारोह के माध्यम से कांकेर में उनके हाथ में वो अधिकार पत्र उन्होंने सौंप दिया, जिसमें 18,500 हेक्टेयर भूमि और एकड़ के रूप में यदि हम समझें तो 45,000 से ऊपर की भूमि का अधिकार पत्र सामुदायिक दावे के रूप में मुख्यमंत्री जी ने दिया है। From Chhattisgarh to the forest tribes of Kandhamal, Odisha, the ground truths remain the same. More than outside help, these people require leaders to emerge from within their communities, like Patro Male. पुनरार मु जीवन को टिके चेष्टा कली जे मो गाँ लोक प्रथम मु एकजुट कली, चिंता कला परे मु किछि सरकारंकर किछि ऑफिस विभाग मत किछि जोगाजोग कली आज्ञा कला परे ना एई गाँर माटी जल जंगल जमी तत्सहित एई अंचलर किछि सरकारंकर योजना गुड़ाक जो रही ताकू केमती आम गाँव किछि उन्नति हबो। An active social worker since his early adulthood, he started taking initiatives to enhance the living conditions and livelihood of his forest village. With help from a local land right NGO, he took the opportunity to claim for community forest rights. मु ये जो जंगल जमी जो 2006 आईन जो अच्छी से आईन उपरे मु प्रत्येक जीपी मीटिंग को जाए एवं से मीटिंग रे आलोचना करे और जितेबाला मु हाथीमुंडा पंचायत रे जीपी मीटिंग रे पात्र मल्लिक सहित कथबार्ता हेली आ से अनुसार से कहले जे प्रथमे आमे बिजाली गाँव में आम आरंभ करवा। तेणु पात्र मल्लिक को आम देखिलु विभिन्न ट्रेनिंग प्रोग्राम से अटेंड करथांती।
तेणु से गोटे इन्स्पायर हेले गोटे उत्साह हेले तेणु पात्र मल्लिक को मध्य ऑक्सफाम जरिया रे विभिन्न स्थान को ट्रेनिंग पाई पठा जाइथिला। वर्तमान से पात्र मल्लिक से सब जानिला परे से विभिन्न गाँव को जाकि मध्य से कार्य करती। Aided by a sense of resolute commitment, Patro is now an exemplary leader in its truest sense. In the hinterlands of Bundelkhand lies Chambal Valley. Despite its natural beauty, it is one of the most backward regions of India. Rita Devi is an ASHA worker who also makes people aware of their right to education. She makes sure that no one is bereft of basic health and education in her area. हमारी आर्थिक स्थिति इतनी खराब थी, एक समय वो था कि मैं यहाँ पर बकरी चराती थी और जंगल से लकड़ी काट कर लाती थी और अपना जीवन निर्वाह करती थी। She rose from the shackles of poverty and ignorance with the help of a local NGO, Dalit Adhikar Manch. She started taking a leadership role because she wanted to change her as well as others' lives. गांव स्तर पे पुरुष प्रधान समझता है अपने को कि हम ही प्रधान है, महिला का कोई हिस्सा नहीं है, लेकिन महिला का पूरा आरक्षण है, पूरा हिस्सा है और महिला का पूरा सपोर्ट होना चाहिए। It is tough to believe that a rural woman in a small village is successfully spreading awareness about sexual and reproductive health of adolescents. But that is exactly what Pratima Kumari is doing, with determination. This founder leader of Gaurav Grameen Mahila Vikas Manch is determined to make the youth of a village understand about their rights. हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को आज भी शिक्षा से वंचित रहना पड़ता है, जल्दी शादी हो जाती है। तो इन अनुभवों को हमने भी सहा है और फिर हमें लगा कि जो मेरे साथ हो रहा है उसे रोकना है या कम करना है, तो हमें काम करना चाहिए समाज में। ऑक्सफैम में संस्था डेवलपमेंट के लिए हमें अलग अलग जो संस्थाएं हैं बिहार एंड झारखंड 6 राज्यों में, उन सब के साथ जो ये प्रोग्राम है कि सोशल इंक्लूजन कैसे हो, उसमें मैं भी एक हूँ। और इनके थ्रू संस्था डेवलपमेंट में बहुत सारे अलग अलग ट्रेनिंग्स दिए जा रहे हैं कि हम किस तरीके से अपनी बात रख सकें। To break stereotypes, she formed a football team with her village girls to make them physically and mentally strong. मुझ में कुछ अच्छा दिखा तो उन लोगों ने मुझे लीडर चुना। मुंबई में मामी फेस्टिवल हुआ था, जो मेरा मूवी था फुटबॉल को लेके ही शूटिंग हुआ था, यही हमारे गांव में और हमारे फील्ड में ही हुई थी। और फिर उसके बाद मुझे वहाँ मुंबई बुलाया गया था। बदलाव ये आया कि पहले हम लोग सोचते थे कि हम लोग लड़की हैं तो ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं, उसके बाद जब इसमें कनेक्ट होने के बाद पता चला कि ऐसा कुछ अंतर होता नहीं है, सब लोग बिल्कुल इक्वल हैं। Equal social representation assures that all voices are heard and no one is left behind. Shameen Bano, an Anganwadi worker from a minority Muslim family, strongly believes that her quest for equality resulted in social leadership. While she was never deprived of education, stepping out of the house used to be tough for her. मेरी भागीदारी इन लोगों ने इसलिए बढ़ाया कि 12,000 की आबादी पे एक मुस्लिम वर्कर काम कर रही है। उनके पास है, तो मालूम है कि हमारे क्षेत्र में कितने आयुष्मान के लाभार्थी लोग,
तो पहले जब किसी के घर पे जाते थे तो बोले थे आ गई, ये आंगनवाड़ी है, कौन है, परिचय होता था। फिर धीरे धीरे सब जानने लगी ये मेरा सही के लिए कर रही है। आएगा दोबारा जाएंगे उसके घर बुलाने। Using her identity as an Anganwadi worker, she is now building a team of like-minded women and expanding her reach within the community. अच्छा लगता है हमें काम में हमारा सुधार आया, औरतें भी सुधार लाने लगी, जो टीका नहीं लगवाती थी वो भी लगवाने लगी, खाता जिनका नहीं खुला था महिलाओं का वो भी खुलवा रही हैं। Lack of access to nutrition remains a major issue for remote rural India. Razi Alam decided to reverse this tide. अगर हम पीडीएस सिस्टम को नहीं लागू करेंगे, उनको घर तक अनाज नहीं पहुंचाएंगे, तो मालूम चला कि बच्चों का मृत्यु दर भी बढ़ते जाएगा, गर्भवती मृत्यु, माँ का मृत्यु दर बढ़ते जाएगा। इस उद्देश्य को हम समझते हुए पीडीएस को मजबूत काफ़ी करने का कोशिश किए हैं। तो अपने पास रखेगा वो, लेकिन आपको During his fieldwork travels, he met sections of society, mainly those from the minority, tribal and Dalit communities, living miserably due to their lack of access to balanced diets. उसमें भी कहीं पैसा में धांधली भी कर रहा है, लेकिन तो अब हमको इसके लिए भी आवाज़ हमको उठाना पड़ेगा। Razi helps people access ration cards and makes them aware about their rights to food. कहावत है ना, जिसका माथम तेल होता है उसको मिल जाता है, लेकिन जिसका माथम नहीं रहता उसको देखने वाला कोई नहीं रहता है। तो कहने का मतलब है कि जहाँ लोग नहीं पहुँच पाता है वहाँ पर हमारा विकास फाउंडेशन जा करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है, जगाने का काम कर रहा है। Razi firmly believes a community that eats well will grow well. हमें कम्युनिटी को विश्वास में लेना पड़ेगा, उनकी क्या आवश्यकता है उसको समझना पड़ेगा, और हर चीज़ में उनकी हिस्सेदारी बराबर की होनी चाहिए। In traditionally marginalized social groups, lack of social inclusion often goes hand in hand with lack of education. Rajesh lives in Akbarpur Jungle in Kushinagar, a Musahar basti, devoid of almost all facilities. Here, education is a luxury. कई बार मैं बिना खाए हुए भी मैं पढ़ा हूँ, स्कूल गया हूँ, पानी पीकर मैं पढ़ाई किया हूँ, उस परिस्थिति से मैं गुजरा हूँ। Rajesh is the first graduate of his village and has been working extensively in the Musahar Basti to sensitize the people to send their children to school. बच्चों को इकट्ठा करके आपस में मैंने बोला, बात किया, खेल खिलाया बहुत प्यार से, और मनोरंजन के साथ में उनको पढ़ना सिखाया। और उसके बाद से गांव के ही विद्यालय में मैंने नामांकन कराया, और मैं रोज़ सुबह उठकर और ले जाकर स्कूल तक भी मैं बच्चों को छोड़ता था। What Rajesh has learned, he shares, so that every child becomes a winner. That's what makes him a winner and a true leader of his community. ऑक्सफैम के लोग जब आए हमारे यहाँ तो मीटिंग करने लगे, तो मीटिंग के माध्यम से हमको भी जुड़ा हो गया। उस मीटिंग से लोग भी बहुत ज़्यादा जागरूकता हुए। एक महिला से हमने अभी जो बात किया, बोल रही हम लोग नहीं पढ़े थे तो क्या हुआ, हमारे बच्चे पढ़ लिख जाएंगे, हम लोग इस तरह से जो हर जगह अत्याचार सहते हैं उसको नहीं सहेंगे, हम लोग जो जाके वेजेस के लिए पैरवी करते हैं या इधर उधर यहाँ से अपने कई सारे स्टेट में जाते हैं लोग अपना रोज़गार के लिए, तो वो कम से कम रुकेगा अगर बच्चे पढ़ लिख गए तो। Even in the national capital, the story of social discrimination persists. Ritika, a 17-year-old girl from backward caste, found it very difficult to enroll herself back in school after dropping out. जो हमारे यहाँ का माहौल है उसकी वजह से मेरी फ्रेंडें भी आ जाती थी, तो उनके साथ में घूमती थी, इसलिए मेरा पढ़ाई में मन नहीं लगता था। मैंने सुना है रितिका स्कूल नहीं जा रही है। नहीं जी,
With the help of a local NGO, she managed to return to school. शिक्षा जीवन में ज़रूरी है, क्योंकि शिक्षा ही हमको अच्छे बुरा का वो दिखाती है, नज़रिया बदलती है, चेंज करती है और एक लीडरशिप लाती है। शिक्षा एजुकेशन जो होती है। Now, Ritika not only enjoys studying, but also aspires to achieve big in life. तो वो चीज़ अगर समझ आती है तो फिर वो बनेगी, लीडर बनेगी एक दिन, और वो मुझसे भी अच्छी लीडर बनेगी, मुझे लगता है। People are the biggest power in making a country. If they take their immediate responsibilities, they can together become a voice of change. ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଗାଁକୁ ଯାଇ କମିଟି ଗଠନ କରି ଯେପରିକି ଜଙ୍ଗଲ ବଞ୍ଚିବ, ଜୀବଜନ୍ତୁ ବଞ୍ଚିବ, ଲୋକ ବଞ୍ଚିବେ, ଜଳ ଜଙ୍ଗଲ ଜମି ବଞ୍ଚିବ, ତାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଆଇନର ପ୍ରଣୟନକୁ ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଉଛି। ଆଜ୍ଞା हमने अपनी लाइफ में एक ही बात सोची है कि अगर घर पर मरेंगे तो मरीज कहलाऊंगी और समाज में मरूंगी तो शहीद कहलाऊंगी। एक तरीके का संकल्प है मेरे जीवन के, जो मैंने सहा है वो कम से कम मैं जब तक हूँ, जब तक ये प्रयास करूँ कि मेरे आसपास के लोग उसको ना सहें। हमारे पास अधिकार पत्र नहीं था तो फॉरेस्ट वाले निकालते थे, तो अभी हमारे पास मौका भी है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि गांव वाले दिखाएंगे सरकार के लोगों को कि ये हमारा अधिकार है, मालिक बन गए हम, ये बोल सकते हैं।